Hello dear students, welcome to Manisha Verma Biology Tutorials. As we know, we are doing the chapter Human Reproduction, and in it today we will take up the female reproductive system in detail. So female reproductive system consists of a set of organs as like the male reproductive system, female reproductive system. सो क्या क्या हमारे पास जो है सेट ऑफ ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंस्टिट्यूट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज द ओवरीज. ओवरीज आर नोन एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ फीमेल because these are the ones which will produce the sex cells or the ova. So second part in the female reproductive system is the fallopian tube. Then there is a uterus, and after uterus there is a vagina, and there is a external genitalia. External genitalia means which is visible from outside. External genitalia known as vulva and breast, and after that's glands. So these are the various parts of the female reproductive system. So this fallopian tube, uterus, vagina, these all are known as the secondary sex organ, that is the ducts associated with the primary sex organ. So these are the female organs of the female reproductive system. We will take one by one. First of all, we will take a overview of the female reproductive system, how it looks like. So very first part of the female reproductive system is a pair of ovaries. Pair of ovaries, and they are almond shape, badam ki shape, almond shape. They are about, its measurement include, they are about 2 to 4 centimeter long, 2 centimeter wide, and 1 centimeter thick. So this is the outer appearance of the ovaries. These are the ovaries. I will label it here. This is the ovary. Now we will see how these ovaries are placed at their position. अब इनकी position क्या है? They are placed in the pelvic region. जो pelvic region, hip region जो होता है वहाँ होती हैं ovaries, and they are situated in the abdominal region. जैसे males के केस में हमने कहा था जो testes हैं उनकी position extra abdominal है, लेकिन in case of female reproductive system ovaries की जो position है that is abdominal. abdominal है और कहाँ पे है ये? pelvic region में, हिप रीजन जो होता है वहाँ पर जो है ओवरी सिचुएटेड होती हैं. अब जहाँ पर ये पेल्विक रीजन में जहाँ ये सिचुएटेड हैं वहाँ पर ये अपनी पोजीशन पे कैसे टिकी हुई हैं, तो यहाँ पर इनके साथ एसोसिएटेड होता है एक ट्रांसपेरेंट, एक मिजेंट्री एसोसिएटेड होती है जो इस ओवरी को क्या करती है? बॉडी वॉल के साथ अटैच करती है. सो लाइक दिस there is a transparent fold of, I will label it here, ovary. तो ये जो हमारे पास है this is the mesentery. mesentery क्या होता है? mesentery एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है. सिंपली ये जो है एक पतली सी, ये सोच लो कि लेयर है एक सेल्स की, उसका एक फोल्ड होता है mesentery. इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन. सो ये जो mesentery है जो हमने यहाँ ड्रॉ की है, इट अटैचेस दिस ओवरी टू द abdominal वॉल. तो इस mesentery का नाम होता है मीजोवेरियम. इसका नाम, जो ये mesentery है इसका नाम है मीजोवेरियम.
तो मीजोवेरियम का काम क्या है? इट अटैचेस ओवरी टू द abdominal वॉल, ओवरी टू abdominal वॉल। तो ये तो आ गया हमारे पास कि ओवरी जो है वो abdominal वॉल के साथ कैसे, सपोज दिस इज़ ओवरी, तो ये हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट फोल्ड है स्किन का, म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो क्या कर रही है, इस ओवरी को पीछे एब्डोमिनल वॉल के साथ जो है वो अटैच कर रही है। तो ये तो हमारे पास मीजोवेरियम। अब इसका नाम हमने जो मीजेंट्री, इसका नाम है मीजोवेरियम। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ओवरी से क्या होता है? ओवरी से एक ओवा रिलीज होता है। ओवा कह सकते हैं हम, लेकिन एक्चुअल में वो एक सेकेंडरी oocyte होता है। सेकेंडरी oocyte क्या होता है, हम oogenesis में करेंगे। तो यहाँ से ओवरी से क्या रिलीज होता है? सेकेंडरी oocyte। अब नेक्स्ट जो है वो सेकेंडरी oocyte, वेयर इट विल गो, ये जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। तो फेलोपियन ट्यूब के जो हम वेरियस पार्ट्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब जो होती है, इसके स्टार्टिंग में इट हैज़ अ वाइडर फनल लाइक पार्ट एंड देन इट हैज़ अ टॉर्टुअस पार्ट like this and has a narrow part. So I will rub this for the convenience sake. So यहाँ से इस तरह से हम बाकी पार्ट्स को बाद में लेंगे, टच करेंगे। तो ये हमारे पास है फेलोपियन ट्यूब। अब हमारे पास जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, दैट इज़ ओवरीज। दूसरा ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है। तो ये जो ट्यूब होती है, इसकी टोटल जो लेंथ होती है, इट इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है इसका इनफंडिबुलम पार्ट, इनफंडिबुलम पार्ट। सेकंड है इसका एम्पुला पार्ट एंड थर्ड इज द isthmus पार्ट। सो 3 पार्ट है फेलोपियन ट्यूब के। फेलोपियन ट्यूब में जो हमारे पास ये ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग में दिख रहा है, दैट इज द इनफंडिबुलम। दिस पॉइंट, this broader part is known as infundibulum. This is the infundibulum part. infundibulum part में क्या होता है, यहाँ पर होती हैं कुछ finger like processes. So this infundibulum part has फिंगर लाइक प्रोसेसेस। अभी फिंगर लाइक प्रोसेसेस क्यों होती हैं? मैंने कहा ओवरी से ओवा जो है वो रिलीज होगा। दिस ओवा, दैट ओवा इज कैच्ड बाय दिस इनफंडिबुलम और द फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में इनफंडिबुलम पार्ट में ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो दीज आर दी फिंगर लाइक प्रोसेसेस। ओवरी से ओवा रिलीज हुआ और ये फिंगर लाइक प्रोसेसेस जो है वो इस तरह से मूवमेंट शो करती हैं, एक सक्शन क्रिएट करती हैं और ओवा को अपने में अंदर सक कर लेती हैं, अंदर ले जाती हैं। तो दिस ओपनिंग इनफंडिबुलम, ये जो बेल शेप पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, इसकी जो ओपनिंग है इसको कहते हैं ऑस्टियम। दिस ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड ऑस्टियम। और जो हमारे पास ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं यहाँ पर, दीज आर नोन एज द फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई, तो फिम्ब्रियाई में क्या होता है, इनमें काफ़ी सारे सीलिया होते हैं। जो फेलोपियन ट्यूब भी हमारी है उसके जो सेल्स होते हैं एंटायरली दे आर सीलिएटेड एपिथेलियम यहाँ पर होती है। वो सब उसी लिए, किस लिए, ओवा को आगे 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 ड्रैग करने के लिए। कहाँ पहुँचाना है हमने ओवा को? लास्ट में यूट्रस में पहुँचाना है। तो ये हमारे पास इनफंडिबुलम पार्ट आ गया। दूसरा, इनफंडिबुलम के बाद ये वाला जो पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, इट इज़ नोन एज एम्प्यूला। दिस इज एम्प्यूला। सो दिस इज द एम्प्यूला, दिस tortuous part
कॉइल्ड सा पार्ट है, थिक सा पार्ट है. टॉर्टुअस मीन्स थिक पार्ट. दिस थिक पार्ट इज़ द एम्पुला. एंड इस थिक पार्ट के बाद जो नैरोअर पार्ट है, जो फेलोपियन ट्यूब को यूट्रस के साथ ज्वाइन करता है, उस पार्ट को बोलते हैं isthmus. दिस पार्ट इज़ द isthmus part. So ampulla is the site where fertilization take place. तो हम ऐसे कहते हैं कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन फेलोपियन ट्यूब के कौन से एरिया में फर्टिलाइजेशन होती है? इट हैपन्स इन एम्पुला. तो दिस इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन साइट. सो ये था हमारे पास fallopian tube part. Now the next part of the female reproductive system, that is the uterus. So uterus जो हमारे पास is antiflexed in female. No, it is called that the uterus is antiflexed. Antiflexed का मतलब क्या है? Means it has a inverted pear shaped structure. इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, इसलिए यूट्रस कहा जाता है फीमेल्स में. इट इज़ एंटीफ्लेक्स्ड. एंटीफ्लेक्स्ड मीन्स इट हैज़ अ इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर. पियर शेप स्ट्रक्चर. तो यूट्रस जो होता है हमारे पास, यूट्रस के भी 3 पार्ट्स हैं हमारे पास. सबसे ऊपर का ये जो डोम शेप पार्ट है, ये जो पार्ट है, दिस डोम शेप पार्ट इज नोन एज फंडस. सो दिस इज द डोम शेप पार्ट. और यहाँ वाला ये पार्ट जो होता है यूट्रस का, जहाँ पर कि isthmus जो है, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ओवरीज के साथ रिलेटेड होता है. ओविडक्ट मीन्स ओवा को जो आगे ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ओवा का डक्ट. तो ये हमारे पास ये पॉइंट जहाँ पर ओविडक्ट एंड होता है, जिन कॉर्नर्स पे, उनको कहते हैं कॉर्नुआ. तो ये हो गया फंडस पार्ट. ये हमारे पास जो मेन पार्ट आ गया यूट्रस का, दैट इज़ द बॉडी पार्ट. और एक नैरोअर पार्ट जो है हमारे पास इस तरह से आएगा यूट्रस का, दैट इज़ कॉल्ड सर्विक्स. दिस पार्ट इज़ द सर्विक्स पार्ट. तो हमारे पास जो यूट्रस है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज वोम, जो मदर्स वोम बोलते हैं हम, दैट इज़ द टर्म यूज्ड फॉर यूट्रस. तो यूट्रस में ही जो हमारे पास फीटस होता है, उसकी इंटायर डेवलपमेंट इट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस. तो यूट्रस जो है प्रेगनेंसी के टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है अपने साइज से. ऑलमोस्ट 300 to 500 टाइम्स जो है ये एक्सटेंड हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो यहाँ पर ये जो हमारे पास यूट्रस है, इसकी जो वॉल होती है वो काफ़ी थिक होती है. और किस किस लेयर से कंपोज्ड होती है? तो सबसे पहले तो लेयर जो होती है, दैट इज़ द पेरीमीट्रियम. बाहर वाली जो लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर जो यूट्रस की है, दैट इज़ द पेरीमेट्रियम. और पेरीमेट्रियम जो लेयर है, इट इज़ अ फाइब्रस लेयर composed of fibrous tissue. उसके बाद जो सेकेंड लेयर हमारे पास है, दैट इज़ द मायोमेट्रियम. Myometrium layer, as the name is indicating, it is a muscular layer highly muscular layer composed of smooth muscles. So this is the myometrium. Myometrium. So myo is the term related with muscle. So that means this layer is composed of muscles. Muscular layer. And after that there is another layer known as endometrium, which is highly vascular and is very much supplied with blood supply, and this layer is the endometrium, the innermost layer. So here
like this. This is the muscle layer, and here this is the endometrium, which is highly vascular. Like this. So this innermost layer, this is the endometrium, and it is vascular in nature. Vascular means has a lot of blood supply. So this narrow part of the uterus, this is the cervix, this is the body part, and this is the upper pyramidal dome shaped part, that is the fundus. Here I also draw like this. Uterus, this is the actual site where the implantation takes place. So we can say that uterus is the site of implantation. Site of implantation. So now going to the next part of the uterus, that is the cervix. This is the narrower part of the uterus, and this cervix, it is about 2.5 centimeter long. 2.5 centimeter long. Cervix has two openings. First is the opening which connects it with the womb, the body part of the uterus, and second opening is here, like this. And outside this cervix, or along with this cervix, there is one more part in the female reproductive system. This is the vagina. So this is the cervix. और सर्विक्स जो है, इसका क्या रोल होता है, सर्विक्स के मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कहे गए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मसल होते हैं। क्यों? क्योंकि इंटायर प्रेगनेंसी में वो क्या करते हैं, फीटस को जो है वो होल्ड करके रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ये जो ओपनिंग्स हैं वो म्यूकस के साथ प्लग हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो प्रेगनेंसी का जो है ज़्यादा हम लेटर ऑन करेंगे। This is cervix, this narrow canal, this is cervix, and it has two openings. This inner opening is known as internal os. Internal os. Os means orifice. Orifice means a opening. Orifice. And this external opening, this is the external os. External os. So external os means external orifice. So internal orifice के साथ cervix communicate करता है to the body part of the uterus, और external os के साथ जो है वो ये external os के साथ cervix communicate करता है बाहर vagina के साथ। अब आते हैं हम next part पे, that is the vagina. Vagina is the place where the sperm are deposited during copulation, and it is also the place from where the menstrual flow comes, and it is also the place from where birth of the child happens. So vagina is also known as birth canal. Birth canal. So this narrow portion here, the point between where the cervix is ending and that vagina is starting is known as isthmus. This point is known as isthmus. So you are seeing some fold-like structure in the vagina. These are known as vaginal ruggi. Vaginal ruggi. So these ruggi become smooth after the first pregnancy. So this is the
vagina, and this vaginal opening, this opening is known as vulva. This opening is known as vulva, and in some cases it is covered by a membrane like structure like this. This is the hymen. So hymen is called as the virginity membrane or like this, but this is not any more sure that hymen is a check of virginity, because in some women it is totally absent, it is not present. तो हाइमन जो है वो उसको हम एक वर्जिनिटी के टेस्ट के तौर पर नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कुछ औरतों में ये होती ही नहीं है. देर आर स्टिल सम विमेन इन विच इट परसिस्ट. सो इट इज़ अ कवरिंग एट द vulva. It is supposed to be torn at the first copulatory act. So this opening is known as the vulva. This membrane like structure, if present on the vulva, is known as hymen, and then the vagina, then the cervix, then uterus, then fallopian tube, and then ovary. These are the parts of the female reproductive system. One more thing here, this place between the cervix and the vagina is known as fornix, and this canal like structure, small canal like structure here forming, is known as cervical canal. This cervical canal, you must have heard about कि females में cervical cancer जो है वो बहुत ज़्यादा common है. This is cervix, एंड जो गर्भाशय की नेक का कैंसर जिसे कहा जाता है, गर्भाशय इज यूट्रस, तो इसकी नेक का कैंसर दैट इज़ दैट सर्वाइकल कैंसर. इट इज़ वेरी कॉमन इन केस ऑफ विमेन, स्पेशली इन इंडिया, वेयर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कंसीडर्ड एज अ टैबू. सो ऐसा जो है वो ये प्रैक्टिस जो है वो नहीं होनी चाहिए. इफ़ देयर इज़ सम इशू रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, you should come ahead and talk about that matter. So ये हमारे पास एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. दिस इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी. यहाँ से जो है वो ओवम रिलीज होता है. इट इज़ कैच्ड बाय द फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब के हमारे पास 3 पार्ट हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस. इनफंडिबुलम पार्ट में माउथ लाइक ओपनिंग होती है जिसको ऑस्टियम बोलते हैं. इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको फिम्ब्रियाई बोलते हैं. ये मूव करती हैं और ओवा को कलेक्ट करती हैं. यहाँ पर एक और चीज़ बताई थी मैंने, ओवरी जो है वो अब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होती है बाय मीन्स ऑफ अ मिजेंट्री विच इज़ अ ट्रांसपेरेंट फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जिसका नाम है मीजोवेरियम. और वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू ऐड हियर, ओवरी जो है वो यूट्रस की वॉल से भी अटैच्ड होती है विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर इस तरह से, तो ये वाला जो है दिस इज नोन एज मीजोस्प्लेंक्स. Mesosplenx. This is also a mesentery which is connecting the ovary to the uterus wall. तो ये फिर हमारे पास इनफंडिबुलम पार्ट हो गया. उसके बाद आया एम्पुला पार्ट फेलोपियन ट्यूब का, जहाँ पर स्पर्म और एग जो है वो मीट करते हैं, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. नैरोअर पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब दैट इज isthmus which connects fallopian tube to the uterus. Now it is also known as womb and it has parts like fundus, body and cervix. और जहाँ पर isthmus ये फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस जो है वो ज्वाइन करते हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को बोलते हैं कॉर्नुआ. फिर हमारे पास यूट्रस जो है वो जो है इट इज़ अ स्ट्रक्चर वेयर इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस. तो ये जो है हमारे पास अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसे चाइल्ड बियर करना होता है. चाइल्ड की इंटायर डेवलपमेंट यूट्रस में जो है वो होती है. तो हमारे पास ये 500 टाइम्स ज़्यादा वज़न तक होल्ड कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है अपने नॉर्मल साइज़ से. नॉर्मल साइज़ क्या होता है वो भी मैं आपको भी बताऊंगी. तो ये जो यूट्रस है, यूट्रस इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द अब्डोमिनल वॉल विद हेल्प ऑफ अनदर मीजेंट्री नोन एज मीजोमेट्रियम. तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट है हमारे पास
मीजोमेट्रियम। तो मीजोमेट्रियम क्या है? इट इज़ द नेम ऑफ द मीजेंट्री विच कनेक्ट्स द यूट्रस टू abdominal wall, uterus to abdominal wall। फिर यूट्रस के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इसका आ गया सर्विक्स। सर्विक्स जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ ए कैनाल, नैरो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर हैविंग टू ओपनिंग्स, इंटरनल ऑस एंड एक्सटर्नल ऑस। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और यहाँ पर जिस पॉइंट पर सर्विक्स और वेजाइना जो है वो स्टार्ट होता है, सर्विक्स ख़त्म होता है, उसको बोलते हैं इस्थमस। यहाँ हम देख रहे हैं सर्वाइकल जो कैनाल है और वेजाइना के बीच में जो थोड़ा सा स्पेस है उसको कहते हैं फॉर्निक्स। ये है वेजाइना जिसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। और रिज लाइक स्ट्रक्चर उस पे होते हैं, वेजाइनल रगी जिनको बोलते हैं। और ये जो एक्सटर्नल जो ओपनिंग है इसको वल्वा कहते हैं। समटाइम्स इस पर एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है जिसको हाइमन कहते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो वन मोर टर्म आई वांट टू add here is nulliparous woman and multiparous woman. Nulliparous woman refers to the women which do not have born any child. In such case, the uterus is 8 centimeter long, 5 centimeter wide and 2 centimeters thick. And in case of multiparous women which have 2 or more than 2 children, तो यूट्रस जो है वो जाहिर सी बात है थोड़ा सा एक्सपेंडेड होगा, उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो नल्लीपेरस एंड मल्टीपेरस। प्लस वन मोर पॉइंट, द यूट्रस इज एंटीफ्लेक्स्ड। एंटीफ्लेक्स्ड, एंटीफ्लेक्स्ड, एंटीफ्लेक्स्ड मीन्स इज इट हैज़ एन इन्वर्टेड pear shape structure। Inverted pear shape structure, and it is also known as, uterus is also known as womb, womb। That's all about the female reproductive system।